everyone, what's up? How are you? I hope you all are fine and doing really a great well. This is your chapter trigonometry. We will do the most important 10 questions that the most frequently asked in papers. Okay, that asked in board exams. And now the pattern got changed. Term 1 has only MCQs. So, in these, the most important 10 questions that are there in of chapter only and only trigonometry. Okay, so let's start with this. In a right triangle ABC, the right angle is at A. Which of the following is true about the other angles B and C? वो कहते एक राइट ट्रायंगल है, लेट्स सी, जस्ट वेट. एक राइट ट्रायंगल है, सपोज वी विल ड्रॉ हियर लाइक राइट ट्रायंगल विच इज राइट एंगल्ड एट ए. जो ए पे राइट एंगल है, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का है राइट एंगल, तो से हेयर ए एंगल. एंड दीज बी एंड सी के बारे में हमें बताना है कि यहाँ पे क्या सही है. सो लेट्स सी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेजर ऑफ द एंगल्स. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंगल्स को मेजर करने के लिए. बोथ एंगल्स शुड बी एक्यूट. क्या दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम वाले होंगे? एक्यूट मीन्स 90 डिग्री से कम वाले और ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से बड़े वाले. सो 90 से बड़े होंगे या 90 से कम. एंड वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड द अदर इज एक्यूट, या फिर एक बड़ा और दूसरा छोटा. So let's see here. We will solve this in our copy. Suppose, just wait. Okay, wait for 2 minutes. So let's solve this question. What is this? Angle A and B and C. Angle A plus B plus C. Okay. Which is equal to 180. Yeah, right? Angle A plus B plus C, which is equals to 180. And we know that angle A is equals to 90 degree. So then we will write, this is angle sum property, okay, which is equals to 180. Now angle B plus C equals to 180 minus 90, that is 90. तो यहाँ पे हमें पता चल गया जो एंगल बी प्लस सी है वो किसके इक्वल होंगे? 90 के इक्वल. मतलब एंगल बी प्लस सी हमें छोटा लेना पड़ेगा तभी जाके हमारा 90 आएगा. तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई? बी ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. दिस इज योर ऑप्शन. ओके, let's see second question. Which of the following are Pythagorean triangles? इनमें से कौन सा है जो Pythagoras triangle है? हम क्या करेंगे, 2 small sides लेंगे, उनका स्क्वायर करके equals to bigger side का स्क्वायर. Let's see. Because this is the Pythagoras theorem. By using the Pythagoras theorem, we will see this question. Let's see the first option. First option में क्या है? 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8. तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर. लेट्स सी कि ये इक्वल आते हैं या नहीं. दैट मीन्स वो पाइथागोरस वो है और वो नहीं है पाइथागोरियन ट्राइंगल. लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन का देखते हैं. 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर. लेट्स सी, 16, 36, 64 नॉट इक्वल, बिकॉज यहाँ पे जो सम आ रहा है वो हमारा 52 है विच इज़ नॉट इक्वल. दैट मीन्स हमारी ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. तो ए ऑप्शन इलेमिनेट हो गई. नेक्स्ट बी ऑप्शन. लेट्स सी द बी ऑप्शन. 2 स्मॉल साइड्स 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर. सो 24 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 26 square. Now you can see like this, you can solve it. So you can solve 24 into 24 is 576 and 10 tens are 100, then 26 multiplied by 26 is 676.
So answer 676 is equals to 676. That is your right answer. That means this is a Pythagorean triangle. So option B is correct option. Okay. Option B is the correct option. Let's see next question. Cos A upon cot A plus sin A, which is equals to. So यहाँ पे हम solve करते हैं ये question. So you can solve here right now. Cos A upon cot A. Next is plus sin A. इसको हमें solve करना है. So let's solve this. Cos A. Cot A is reciprocal of tan A. So you can write cos A upon sin A होता है वैसे plus sin A. Okay. Now because you can see here cot A is equals to reciprocal of tan A. What is a tan A now? Sin A upon cos A. So you can solve cot A is equals to cos A upon sin A. I have shown this is in brackets. Okay. So you can write cos A से हमारा cos A कट जाएगा, sin A हमारा ऊपर चला जाएगा, तो sin A plus sin A equals to double of sin A. So हमारा आंसर double of sin A आ गया. So your correct option is double of sin A. B option is the correct option. Option number B is correct option. Okay. So let's see next question. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है. cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री देन उसके बाद है मल्टीप्लाई cos 180 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब cos 180 तक जितना मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ तक का हमें आंसर बताना है. अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको पता है, अब आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है. सो यू कैन सी हियर लाइक दिस. हमारी जो cos यहाँ पे देख रहे हो cos 90 की जो हमारी वैल्यू होती है, यू कैन सी cos 90 की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0. तो cos 90 भी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है. cos 90 तक हमें पता करनी है, cos 180 तक पता करनी है, तो cos 90 भी उसमें बीच में आ रहा है. सो cos 90 अगर हमारा 0 हो गया तो बाकी जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो सारी क्या हो जाएगी 0. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन विच इज 0 ऑप्शन. ओके. सो यू नो नीड टू सॉल्व दिस, ओनली यू विल थिंक द रूल्स दैट आई हैव, जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी आप उससे भी देख सकते हो. आपको साथ के साथ दिमाग में आ जाएगा जो cos 90 की वैल्यू वो 0 है तो जितने भी मल्टीप्लिकेशन हम करें आंसर विल बी 0. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट मोर क्वेश्चंस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके. yes, let's do the next question number 5. Let's come on to the question number 5. Let's see the question number 5. If tan A minus B is equals to 1 by root 3 and tan A plus B which is equals to root 3 and 0 degree is greater than A plus B ज़्यादा greater है और A plus B से बड़ा क्या है 90 degree, then A is greater than B, then find the value of A and B. तो हमें A और B की वैल्यू निकालनी है इस पे. Let's see. So let's see this question. So ऐसी कौन सी वैल्यू है जब tan A minus B, मतलब tan A minus B को आप क्या लेके चलो, यहाँ पे A minus B को आप थीटा कंसिडर करो बिकॉज हेयर इज अ ब्रैकेट. या सो tan थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है, सो थीटा का कौन सा एंगल है जहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 1/√3 आती है. सो वो कौन सा एंगल है, tan 30. tan 30 की वैल्यू है जब हमारी वैल्यू 1/√3 आती है. सो 30 हमारा थीटा किसके इक्वल है, A माइनस बी के. हमारा थीटा हमें पता लग गया 30. सो 30 किसके इक्वल है, A माइनस बी के.
अब हमारा नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जब tan थीटा की वैल्यू √3 होती है। अब हमारा a प्लस बी किसके इक्वल है, थीटा के। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जब हमारी √3 आती है tan की। सो tan थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जब √3 आता है, दैट इज 60। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता लगी 60। सो 60 इज इक्वल टू a प्लस बी। Now we have two equations through which we can solve the value of a and b. So let's see here, a is equals to 30 plus b. Let's do the substitution method. I am doing substitution method. So a is equals to 30 plus b. Now put this value in second equation. Okay, 60 equals to 30 plus b plus b. Okay, 60 minus 30 is 30 and 2b, which is equals to 30 by 2 is b. 15 is the answer. Okay, now next b की वैल्यू हमें पता लगे। b की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा फाइंड आउट कर देंगे। 30 प्लस 15 ए ऑप्शन, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी आ रही है 45 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 15। सो 45 और 15, दिस इज योर b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज व्हाट। तो कॉसेक पहले देखो किसका रेसिप्रोकल होता है। सो कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, या तो हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू तो पता ही है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/5, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1/3। 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, सी हियर। ओके, सो 1/3 और 5 हमारा ऊपर चला जाएगा 5। सो आंसर विल बी 5/3। आंसर हियर इज 5/3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट्स डू द सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ sec 45 इज। अब sec 45 की हमें वैल्यू बतानी है। अब sec देखो पहले किसका रेसिप्रोकल है, cos का। सो cos का रेसिप्रोकल है sec। सो यहाँ पे हमें cos की वैल्यू कितनी होती है, 1/cos 45 की वैल्यू हमें पता करनी है। cos 45 की वैल्यू, अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। सो यहाँ पे 1 और √2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर विल बी √2। सो हेयर ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, √2। Eighth question, if theta is equals to 45 then sec theta cot theta minus cosec theta tan theta is equals to। let's see here, जो अब हमें थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं sec थीटा cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू tan थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, बट कॉट की वैल्यू क्या होती है, और cos। सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का। सो 1/cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, हमें कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉट थीटा किसका है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का। सो cos से cos कट गया, सो 1/sin थीटा। अब हम इस वैल्यू को करेंगे सॉल्व। सो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन थीटा, और tan साइन बाय cos। सो साइन से साइन कट गया, सो 1/sin थीटा माइनस ऑफ 1/cos थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है 45, सो 1/sin 45 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और 1/cos 45 की। तो साइन की वैल्यू क्या होती है 45, 1/√2। सो √2 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है
1/√2, सो 1/√2 पर चला जाएगा तो √2 माइनस √2, तो ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 0. आंसर इज 0. सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. Okay, next question, let's do fast. Sin 30 plus cos 30 minus sin 60 plus cos 60. Firstly, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू प्लस हमें cos 30 करना है. Yeah, right? Wait. So let's solve this. sin 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? That is 1/2. Yeah, am I right? So sin 30 की हमारी वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू इज √3/2. Now you can solve this. Minus of sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3/2 and cos 60 वैल्यू has 1/2. So you can solve this. आपको पता है कि ये अब सारा कट जाएगा, so answer will be 0. Okay, so option here B is your correct option. Yeah. Let's do the next. Given that sin theta equals to A by B, then cos theta is equal to. अब इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है, पर यहाँ पे अब हमें वेरिएबल्स में सॉल्व करना है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है. लाइकवाइज जैसे आप डिजिट्स को सॉल्व करते हो वैसे ही आपको वेरिएबल्स को सॉल्व करना है. सो लेट्स सी हियर. सो लेट्स सी. Firstly, draw the right triangle, and अब हमें पता है जो sin थीटा इक्वल्स टू A/B होता है वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. सो नेम दीज ट्राइंगल्स. ओके, सो बेस इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC. सो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है इसकी A/B. अब हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो cos थीटा का क्या होता है? cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? दिस ऑपोजिट टू बेस. ओके, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC. ओके, अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हमें पता है BC इज इक्वल्स टू A एंड AC इज इक्वल्स टू B. सो B का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. लेट AB को हम क्या लेते हैं? x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सोचो हमें. सो B स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. x की वैल्यू हमारे पास आ गई. x किसके इक्वल है? AB के, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. अब cos थीटा किसके इक्वल है? AB अपॉन AC. AC की वैल्यू हमें पता है B, सो AC की वैल्यू B और AB की वैल्यू हमने निकाल ली बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सो ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट. सो विच ऑप्शन मैचेस विद दिस? C option is your correct option. Okay, C option is your correct option. So you can take screenshot of this. Do fast. Yes. Now these are your two most 10 questions that are very, very important and you can do in any method. This is your rough work that I have done. You can take also the screenshot of this. And this हमें ऐसे समझ में नहीं. चलो. Okay, stay here and please do subscribe to my channel and share this video to your friends. Okay, bye bye.